It was wonderful to come to the presence of God. ये काफ़ी अद्भुत है कि हम प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पे आते हैं। So this sermon is fresh for the Hindi service. और ये हिंदी सभा के लिए एक काफ़ी ताज़ा ऐसा प्रभु का वचन आने वाला है। It's not preached in English or in Kannada, so you are all privileged. और इंग्लिश या कन्नड़ सभा में इसका प्रचार नहीं किया गया, तो आप सब काफ़ी सौभाग्य है आपका कि आप ये वचन सुनने वाले हैं। Amen. Now we'll pray before that. Let me come to today's scripture. It's from the book of Exodus, chapter 25, verse 10. और निर्गमन की पुस्तक इसका 25वां अध्याय और 10वें वचन से हम लोग देखेंगे। You have to follow with me. I have a bunch of scriptures to talk about, so you'll have to swift through your Bible. और काफ़ी सारे वचनों को मैं आपसे बांटने वाला हूँ, तो आपके बाइबल को आप खोल के बराबर रखिए। Have the people make an ark of acacia wood, a sacred chest 45 inches long, 27 inches wide, and 27 inches high, overlaid inside and outside with pure gold, and a running molding of gold all around it. Cast 4 gold rings and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. Make poles from acacia wood, overlay them with gold. Insert the poles into the ring at the sides of the ark to carry it. Okay, that's it. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बाबुल की लकड़ी ले के एक संदूक बनाया जाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसके चौखे सोने से भीतर और बाहर मंडवाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों पर और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। Let's close our eyes, have a quick prayer before we return back to this verse. और आइए हम आँख बंद करेंगे और प्रार्थना में अपना लक्ष्य लगाएंगे। उसके बाद में इन वचनों पर हम फिर एक बार अपना लक्ष्य केंद्रित करें। Father, thank you for this time that we could come together to hear from your word. पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने मौका दिया है कि हम आपके वचनों से सुन सके। Lord, let your spirit take control of this time. परमेश्वर, आपकी आत्मा इस समय को अपने नियंत्रण में ले। Not my thoughts, but your thoughts, not my words, but your words. और मेरे विचार नहीं, लेकिन आपके विचार, मेरे शब्द नहीं, लेकिन आपके विचार, आपके शब्द हो। And let your word go and fulfill its purpose that it has intended to, Father. और आपका शब्द आगे जाए और जो आपके शब्द की इच्छा है वो इस जगह पे पूरी हो सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। All right. So this is a very scripture that we try to pass along, jump along. और ये ऐसा वचन है जो कि जिससे हम जल्दी उससे बाहर निकलना चाहते हैं। So I'll be asking several questions so you can answer. और मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं। Simple questions, साधारण से प्रश्न, no trick questions. और कोई ट्रिकी प्रश्न नहीं रहेंगे। So what is this scripture talking about? और ये वचन किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है? Anyone? क्या कोई बता सकता है? Huh? Tabernacle. Good answer. और ये Now, those of you who don't know, it was a morning sermon joke. और ये परमेश्वर के तंबू के बारे में यहाँ पे कह रहा है, इस हिसाब से उत्तर So दिया there could गया। be a better answer. Tabernacle, Ark of the Covenant. और वाचा के संदूक के बारे में। Okay, so that is what is. और Now ये So I always ask this question: why should we in the New Testament Christian read this or read about tabernacle or Ark of Covenant? और मैं हर समय ये प्रश्न पूछता हूँ कि हम नए नियम के जो विश्वासी है, तो हमें ये वाचा के संदूक के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है? Anyone? Why should you read about tabernacle? और इसके बारे में हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? Any answers? Why you want to know the breadth, the height, the width, the gold? और क्यों आप जानना चाहते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी और वो कितना ऊंचा बनाया गया था, किस प्रकार बनाया गया था? God's presence dwelt there. परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे मौजूद थी। Good. Good answer. Right? Or the point again comes back to why should we read the Old Testament? और प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि हमें पुराना नियम पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? It's bunch of laws
that we don't necessarily follow. और ऐसे नियम उसमें लिखे गए जो जिसका पालन हम नहीं करते, There are good stories, but half of it we don't understand और उसमें काफ़ी अच्छी कहानियाँ दी गई है, लेकिन उसमें से कई चीज़ें हम समझ नहीं पाते, because we are not from that time, we are not from that culture, और हम उस समय से नहीं हैं, उस कल्चर से हम लोग नहीं आते। and we understood yesterday that half of what we know is also wrong. और कल हमको पता चला कि जितना हम जानते हैं वो सब भी आधे से ज़्यादा गलत है। So why should we go to Old Testament? और क्यों हमको पुराने नियम में जाने की ज़रूरत है? Any answers? कोई उत्तर है? Why should we read Old Testament? पुराना नियम हमें क्यों पढ़ना चाहिए? Huh? It's God's word. और ये प्रभु का वचन है, इसलिए। It's good answer. Good answer. It's God's word. और ये प्रभु का वचन है। Yeah, and I think we learned this yesterday, so I'll repeat that for those who didn't come. और कल हमने ये सीखा कि 2 Timothy 3:16. और दूसरा तिमुथियुस इसका 3 अध्याय 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है। So what does it say? और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So what did we learn yesterday? God breathed. Anybody? और कल हमने सीखा कि प्रभु का जो श्वास है वो क्या है? Inspiration, inspire. In English is inspire. और वो प्रेरणा हमें देता है। Anybody in Greek? We learned Greek yesterday. और कल यूनानी भाषा में हमने कुछ सीखा। Anybody? Those who attended? I can't also pronounce it. I tried to memorize it, but now it's gone from my memory. It's Theophinostos. थियोफिनोस्टस। If it is wrong, it's wrong, but it's God breathed. और ये प्रभु का जो श्वास है या उसका शब्द है। So, this passage, when it says all scripture, talks about what? और ये वचन में हमको देखने मिलता है कि जो पूरा पवित्र शास्त्र है वो किसके बारे में बात कर रहा है? It talks about Old Testament. और ये पुराने नियम की बात वहाँ पे वो कर रहा है। Because there was no New Testament when this verse was written. और जब ये वचन लिखा जा रहा था उस समय नया नियम नहीं था, तो वो पुराने नियम की बात कर रहा है। Paul studied Old Testament. और पौलुस ने भी पुराने नियम को सीखा। Timothy studied Old Testament. और तिमुथियुस ने भी पुराने नियम को सीखा। Even Jesus preached Old Testament. और प्रभु यीशु भी पुराने नियम को उन्होंने सिखाया। So, is that reason enough to read the Old Testaments? और ये कारण काफ़ी है कि हम पुराना नियम पढ़े? Yes. हाँ। Because they were New Testament Christians. और क्योंकि वो नए वाचा के वो मसीह थे। At least Paul and Timothy, they're all New Testament people. और पौलुस और तिमोथी वो सब नई वाचा में वो विश्वासी थे। So they were inspired or they read the God breathed verse. और वो प्रभु से प्रेरित हुए और उन्होंने परमेश्वर का जो श्वास है उसके वचनों को उस प्रकार से पढ़ा। But second question, दूसरा प्रश्न, how do we read the Old Testament? Or what do we gain out of this Old Testament? और ये पुराने नियम पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है? What are we looking in the Old Testament? और पुराने नियम में हम क्या ढूंढ रहे हैं? Stories? कहानियाँ? Trying to understand God's character. और परमेश्वर के चरित्र को हम जानना चाहते हैं। Good answer. Jesus. Right, that's the right answer. We read the Old Testament. See, as I was reading my Bible years ago, I was trying to read the book of Revelation. और कई वर्षों पहले जब मैं प्रकटीकरण की पुस्तक में पढ़ रहा था, And it's not easy to read. और ये आसान नहीं है पढ़ने के लिए। We all run through it, half of it we'll never understand it. और जब हम उस पर पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा हमको पता नहीं चलेगा। It's very tough. और ये काफ़ी मुश्किल है। So, but what is Revelation about? और ये प्रकटीकरण किसके बारे में है? Is it about end times? और ये अंत के समय के बारे में है। It's written, और उसमें लिखा तो है, and we try suspecting it, we generally get it wrong. और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और हर समय गलत है, हम विफल होते हैं। But the book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. और जो प्रकटीकरण की पुस्तक है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण के बारे में है। Even John, the writer, और यूहन्ना जो उसका लिखने आ रहा है, he was
the closest disciple to Jesus. और वो यीशु का काफ़ी करीबी शिष्य था। He himself writes, the disciple whom Jesus loved. और यीशु जिस शिष्य से ज़्यादा प्रेम करता था उसने इस पुस्तक को लिखा है। But when he saw Jesus this time, और इस समय जब वो प्रभु यीशु को देखता है he falls flat. और वो पूरा नतमस्तक हो जाता है। Why? क्यों? It's not the same Jesus that he saw while he was on the earth. और वो उस यीशु को नहीं देखता जो कि जैसा उसने इस पृथ्वी पर उसे देखा था। He had a new revelation of who Jesus is. और यीशु का उसे एक नया प्रकटीकरण मिलता है। So when we read the Bible, और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, especially I'm coming back to the Old Testament, और पुराने नियम के बारे में जब हम देखते हैं, there are wonderful stories, और वहाँ पे काफ़ी अद्भुत कहानियाँ हैं, wonderful wisdom, और काफ़ी उसमें ज्ञान है, life-giving wisdom as yesterday we learned, और जीवन देने वाला ज्ञान उसमें दिया है। but it all points to Jesus. लेकिन वो पूरा उसका दृष्टिकोण है यीशु की ओर है। Yesterday we learned और कल हमने सीखा that we don't consider we don't worship the word, और हम शब्दों की या वचन की आराधना नहीं we करते, don't follow the word, और वचन के पीछे हम नहीं चलते, we follow Jesus. लेकिन हम यीशु के पीछे चलते हैं। The word points to Jesus. और जो ये शब्द जितने भी है वो प्रभु यीशु की ओर उसका दृष्टिकोण है। Same thing when we read the book of the Old Testaments, और जब भी हम पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, we have to see Jesus. और वहाँ पे हमें यीशु को उसमें देखना है। I didn't say this. और ये मैं नहीं कह रहा, Who said it? किसने कहा है? Don't say Jacob Cherian. और ये मत कहिए कि जेकब चेरियन ने कहा। Who said? किसने कहा? Any guesses? और कोई उत्तर है आपके पास? The writer of? Who? Person is not necessarily. They also had little clue और उनके पास में भी थोड़ा बहुत उनका संकेत था। what they are writing. और Yeah. I mean, let me not go there. Then we have to do A, B, C, D. So, but who said it? किसने इस प्रकार से कहा? Jesus said it. यीशु ने कहा, Right? In John 5:39, it's there. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 39वें वचन में Jesus said, you study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। These are the very scriptures that testify about me. और यही वही वचन है जो मेरी गवाह देते हैं। Jesus said to the Pharisees और वहाँ पे फरीसियों को यीशु इस प्रकार से कहते हैं that they missed seeing Jesus. और वहाँ पे वो यीशु को वहाँ पे वो खोजना वो भूल जाते हैं। So when we read the Old Testament, और जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, we have to see Jesus. हमको उसमें यीशु को देखना है। Now, some years back, I was probably more systematically studying the Bible. और कुछ वर्षों पहले मैं सही रीति से प्रभु के वचन को सीख रहा था, पढ़ रहा था। And I used to go to discuss about some questions of the Bible with some group of people. और मैं प्रभु के वचन पढ़ने के बाद में जो मुझे प्रश्न आते थे वो किसी ग्रुप में जाके मैं उनसे पूछता। And I used to think of lot of questions, some of the crazy questions. और काफ़ी प्रश्न मुझे आते। And one person in the group, any question I asked, the answer was Jesus. और एक व्यक्ति उसमें से था, अगर मैं कुछ भी प्रश्न पूछता तो उसका उत्तर वो देता कि यीशु है। Frustration for me. और वो मुझे काफ़ी वो मुश्किल में डालता। I'm thinking some complex question. और मैं काफ़ी गंभीर रीति से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। The answer is Jesus. और उसका उत्तर केवल यीशु है। Now that I'm reading, और जब मैं इस वचनों को पढ़ता हूँ, that is, I'm able to see that. और मैं उसे देख सकता हूँ। There's one scripture I've not included, but John 1:1. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन, It says, what is John 1:1? और यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन क्या है? In the beginning was the Word was God. और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। The word there used is logos. और यहाँ पे लोगस इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। I'm not a Greek expert. और मैं यूनानी भाषा में उत्तीर्ण नहीं हूँ। I'm just saying what I read in a commentary or heard a preacher saying it. और जो मैंने कमेंट्री में पढ़ा या किसी प्रचारक से सीखा वही बता रहा हूँ। So the word logos was used by these philosophers.
और जो विद्वान इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं I think- लोगस इस शब्द का, much before Socrates and all. सोक्रेटिस और उनसे पहले जो फिलोसोफर्स थे, When they were studying philosophy, और जब वो उसकी शिक्षा जब वो ग्रहण कर रहे, they were trying to find the reason और वो of things. और वो चीज़ों का कारण ढूंढते थे कि ये क्यों हो रही है, Why life happened, और जीवन किस लिए होता है, like biology, और जैसे बायोलॉजी या the विज्ञान जो है, reason for the existence of the biology, और जो जैविक शास्त्र है zoology and all this with the logy is nothing but their logos. और वो जो शब्द है वो लोगोस के बारे में कहा जाता है। So one way to look at that word is और एक प्रकार से हम इस शब्द को जो देख सकते हैं, when John uses it, जब यूहन्ना इसका इस्तेमाल करता है, he's saying the reason that you're finding is Jesus. और ये कारण जो आप ढूंढ रहे हैं वो यीशु मसीह है, So that means the answer to your question is Jesus. और तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर यीशु है। So that's again how true or false you can go to the ABCD and figure it out. अगर आपको उसका सच है कि गलत है ये जानना है तो आप उसके बारे में काफ़ी गहराई से ढूंढ सकते हैं। So the Old Testament is all about Jesus. और जो पुराना नियम है वो केवल यीशु के बारे में है। So the book of Hebrew talks about this. और इब्रानियों की पुस्तक में हमें ये देखने मिलता है। If you go through the book of Hebrews, I'm not going to go through it now. और इब्रानियों की पत्री को अगर हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से आपको देखने मिलता है। The book of Hebrews compares Jesus to everything और in the Old Testament. और इब्रानी की पत्री है वो यीशु को पुराने नियम के रीति से वो देखती है। How Jesus is above the angels, how Jesus is a man, how Jesus is greater than Moses. और यीशु किस प्रकार से जो स्वर्गदूत है और जो मूसा है और इन सब से उनका उसकी तुलना वो करते हैं। So the writer of Hebrews is comparing to all that events that happened in the Old Testament and point towards Jesus. और इब्रानियों का जो लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में जो भी चीज़ें हुई है उसके साथ में तुलना करता है और यीशु की ओर उनको लेके आता है। So to understand, so in the New Testament we know Jesus, और नए नियम में हमें यीशु को हम देखते हैं, and the shadow of it is there in the Old Testament. और उसकी जो यीशु की जो परछाई है वो पुराने नियम में हमें देखने मिलती है। And this is how we have to read the Old Testament. और इसी प्रकार से हमको पुराने नियम पढ़ने की We ज़रूरत can है। see the nature of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम देख सकते We हैं, can see the shape of Jesus. और यीशु किस प्रकार से उसे हम देख सकते We can हैं, even see the gospel. और सुसमाचार को हमें उसमें देखने मिलता है। Today we heard in the morning, when was the first gospel preached? और आज Those who सुबह हमने सुना और देखा कि सुसमाचार कब पहली बार प्रचार किया गया था। Now morning we learned it was through Mary. और सुबह हमने देखा कि मरियम के द्वारा उसका प्रचार किया गया। Those who are confused, listen to the YouTube recording. It will be available tomorrow to know how Mary heard the first gospel. अगर आप विचलित हैं तो आप अगर जानना चाहते हैं तो YouTube पे सुबह का सरमन आप कल देख सकते हैं। But I don't want to contradict our Jacob Cherian. There's no position for me to do that. But I feel the gospel was preached much earlier. और मुझे ये लगता है कि जो सुसमाचार है उससे भी काफ़ी पहले वो प्रचार किया गया था। I found the gospel preached first in Genesis 15:6. और मुझे ये लगता है कि उत्पत्ति इसका जो 15वां अध्याय है उसके 6वें वचन में हमें सुसमाचार देखने को मिलता है। What does that say? Genesis 15:6. और उत्पत्ति 15:6 में क्या लिखा है हम देखेंगे। And Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteousness because of his faith. और यहाँ पे हमको देखने मिलता है कि अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु पर और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया और उसे एक धर्मी वहाँ पे कहा गया है। Is this the gospel? क्या ये सुसमाचार है? Is our faith credited to us as righteousness? क्या हमारा विश्वास हमें दिखाता है कि वो धार्मी हम बनते हैं? So this gospel was first preached by God to Abraham. और यहाँ पे परमेश्वर ये सुसमाचार अब्राहम को यहाँ पे देता है। It's no human concept. और यहाँ पे कोई मनुष्य का कोई समझ या सोच नहीं है। Of course, not fully realized it. और यहाँ पे हम पूरी तरह से उससे समझ नहीं सकते। As I said, it's a shadow, और जैसे मैंने कहा कि ये परछाई है, but the gospel is there. लेकिन यहाँ पे सुसमाचार हमें देखने मिलता है We need to look for it. और हमें उससे ढूंढना है। And
That's where I want to bring to today's concept. This was just an introduction. और यहाँ पे मैं आपको आज का जो संदर्भ है वो दिखाना चाहता हूँ। So we'll go back to our story, the story of tabernacle. और हम चाहते हैं उस कहानी पे जो कि हमने वाचा के संदूक के बारे में देखी। And here how do we see Jesus? और यहाँ पे हम यीशु को किस प्रकार उसमें देखते हैं। I believe they had a worship team meeting where Anna and they were all speaking on the covenant, the tabernacle, how it was designed, how the worship was done. और वर्शिप टीम की मीटिंग में आना एक बार बता रही थी कि किस प्रकार से वाचा का संदूक और पवित्र स्थान और किस प्रकार से वो बनाया गया था। I'll take it slightly a different route. और मैं थोड़ा सा उसमें से अलग जगह से आपको बताना चाहूँगा। Let's follow at least little bit what we learned yesterday. और थोड़ा हम सीखेंगे कि जो हमने कल जो शिक्षा पाई है उसको लागू करेंगे। How? कैसे? First we should understand what context it is. और पहले हम देखेंगे कि वो किस संदर्भ में वो लिखा गया है। So what was the context? और यहाँ पे उसका संदर्भ क्या है वो हम देखते हैं। What was the context of this verse of the Ark of Covenant? और यहाँ पे वाचा के संदूक के बारे में लिखा जाना क्यों ज़रूरी था, उसका संदर्भ क्या है। It's a very interesting story. It's a famous story. और ये काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण कहानी है। So what has happened? People of Israel have been delivered from the land of Egypt. और इजिप्ट से इस्राएलियों को छुड़ाया गया था। Right? Amazing miracle. और काफ़ी अद्भुत वहाँ पे चमत्कार हुए। All right? And one of the greatest miracle there was the Passover. और वहाँ पे जो सबसे अद्भुत एक चमत्कार हुआ था जो कि उल्लंघन का पर्व जो कहता है उस हिसाब से। There were 10 plagues. और वहाँ पे 10 प्रकार की अलग अलग बीमारियाँ आई। Why is I find the centrality of that story lies in the event of Passover. और जो उसका जो मध्य स्थान है वो उल्लंघन का जो पर्व है उसमें हमें देखने मिलता है। Why? क्यों? It points to Jesus. क्योंकि वो यीशु के उसका लक्ष्य लगाते हैं। I find there is no greater explanation in the Old Testament for the cross, for Jesus' death on the cross than the event of Passover. और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो दर्शाता है कि उसके क्रूस पे जो उसने मृत्यु को पाया उसका संदर्भ हमें पुराने नियम में उल्लंघन के पर्व के समय में देखने मिलता What है। happened in Passover in a gist I will give you. और जो उल्लंघन के समय में किस प्रकार से ये हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। The lamb had to be killed. और वहाँ पे एक मेमने को वहाँ पे बलि करना पड़ा। The blood had to be applied on the doorpost. और उसके दरवाजों के चौखट पे उसका लहू को लगाना पड़ता। So that the destroyer would pass over. और ताकि जो नाश करने वाला है वो उसके उल्लंघन उसके ऊपर से जाके वो गुजर सके। The judgment wouldn't come on them. और उनके ऊपर में न्याय ना आए। Right? Closer to the gospel that we believe. और जो सुसमाचार पे हम विश्वास करते हैं उसके लगभग करीब है। Of course, if you go down to the detail, it's much more detailed. और अगर हम उसको गहराई से देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे भेद हमें देखने मिलते हैं। And do you know what is fascinating? और यहाँ पे क्या चीज़ एक अचंभित हमें करती है। In the Passover, during the Passover celebration, और जो पासओवर सेलिब्रेशन या उल्लंघन का जो पर्व है, Jesus instituted the communion. और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे मेज को जो प्रभु की मेज को वहाँ पे स्थापित किया। So what we took और जो हमने प्रभु की मेज में से जो लिया and what happened in the Passover, there is definitely a link. और जो उल्लंघन के पर्व में हुआ उसके साथ में एक हमको एक कनेक्ट या जुड़ाव देखने मिलता है। So definitely it points to what Jesus did on the cross. और ये हमें दिखाता है कि यीशु ने उस क्रूस पे जो किया उसके बारे में। But let's walk through the story. आइए हम कहानी को थोड़ा सा देखेंगे। And I'll speed up the story for you. So once they were liberated from Egypt, और इजिप्ट देश से जब उनको छुटकारा मिला, they walked through the desert. और वो डेजर्ट से उस मरुभूमि से गुजर रहे थे। Bunch of events happened. और वहाँ पे काफ़ी सारे घटनाएं हुई। They complained, no non-veg. God provided non-veg. No water. God provided water. Like we had no non-veg yesterday. Somebody should have prayed. Nobody prayed, so we had veg yesterday. So that's what happened in the desert.
और वो कुड़कुड़ाने लगे, उनको खाने में नॉनवेज नहीं मिला और फिर पानी नहीं था, और इस प्रकार से कल भी हमको नॉनवेज नहीं मिला, हम भी वेज खाना खा रहे थे। So that's the story. And now they come through the desert. और वो कहानी इस प्रकार से है कि वो उस मरुभूमि से निकल Imagine रहे with me. They come and then there is a one huge mountain और वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक पर्वत आया, वहाँ उसके पास वो आते हैं and they camp there. और वहाँ पे वो ठहर जाते हैं। This is an important event. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। Why I say it's an important event? क्यों ये महत्वपूर्ण घटना है? You know how long they camp there? और वहाँ पे वो कितने समय तक वो वहाँ पे ठहरे रहे? It starts with Exodus 19:1 where it says they camped on the first day of the third month. और यहाँ पे 19वें अध्याय में देखने को मिलता है कि तीसरे दिन जो कि पहले महीने का था, वहाँ पे वो लोग रुके। On the first day of the थर्ड मंथ, third month. पहले तीसरे महीने के पहले दिन वहाँ पे वो रुके। Exactly what we are today. और उसी प्रकार से आज भी हम First day or second day of the third month. दूसरा दिन है आज तीसरे महीने का। And we celebrated kind of a New Year celebration. Pastor pointed out this to us. और हमने नए साल की जिस प्रकार से हम खुशी मनाते हैं, उस प्रकार से परमेश्वर The new year of Israelites began with their liberation from Egypt. और जैसे पासवान ने हमको बताया कि नया साल इसराइलियों के लिए जब उनका छुटकारा हुआ और इजिप्ट से वो निकले, वो उनके लिए नया वर्ष था। So bear with me, I'm telling you a story. और मेरे साथ में थोड़ा सा सहयोग दे। They stayed still in the same place. They camped till second year 12th day of the second month. और वो उसी जगह पे रुके दूसरे वर्ष के 12वें दूसरे महीने के 12वें दिन तक। दूसरे वर्ष के 12 दिन के दूसरे महीने पे। बराबर, ठीक है। So that's there in number 10, 11. So you do the math. Was it 1 year, more than 1 year, 2 years? They were camping there. और वो 1 वर्ष या 2 वर्ष तक के वहाँ पे वो एक ही जगह पे ठहरे रहे। Obviously there is something really important happening here. और वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ हो रही है। Otherwise why would they stay for that long there? और वो क्यों इसलिए इतने दिनों तक वहाँ पे रुके रहे? What is this important event? और ये महत्व की चीज़ क्या हो रही है? Anyone? What is so important happening here? क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या महत्व की बात यहाँ हो रही है? वो क्यों इतने दिन वहाँ ठहरे रहे? Any guesses? What happened here? क्या आप विचार कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहाँ पे? Any guesses? I said I'll ask questions. So, huh? Moses went to the mountain. That's all, huh? Nobody was there on the mountain. So Moses went to the mountain. और यहाँ मूसा उस पर्वत पर गया। Why? किस लिए? Selfie. No. So what is so important here? ये क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है? And we will see that. आइए हम उसे देखते हैं। Okay. So Moses goes up to the mountain. You know how many times he goes up to the mountain? और मूसा पर्वत पर जाता है और वो कितने बार वहाँ पर्वत पे चढ़ा? 2 बार. Any guess? Any more guesses? Good answer. But any more guesses? How many times would Moses would have climbed? मूसा पर्वत पर कितने बार चढ़ा? कोई बता सकता है? 4 times. 4 बार। Good. You can still keep increasing. I'll tell you to stop. No. I counted yesterday is about more than 6 times. और मैंने कल उसके ऊपर में थोड़ा सा मनन किया और वो 6 से भी अधिक बार वो वहाँ पे गया। He was a strong man. और वो काफ़ी शक्तिशाली ऐसा Because था। this is a desert mountain, not easy to climb. और ये मरुभूमि में ये पर्वत है, वहाँ be पे hot. आसानी से आप चढ़ नहीं सकते। And some suggest that it could be as tall as 4,000 feet. और कोई बताता है कि वो हो सकता है कि 4000 फीट इतना ऊंचा हो। It's a tough climb. और ये काफ़ी मुश्किल चढ़ाव है। So Moses climbed 6 times. So what is happening? There are different events that happens here. और मूसा उस पे 6 बार चढ़ता है और वहाँ पे अलग अलग घटनाएं हो रही है। So first time when he climbs, और पहली बार जब वो चढ़ता है, God gives him a promise. और प्रभु उसे एक वाचा देता है। So the Lord called him from the mountain, give this instruction to the family of Jacob, announce it to the descendant of Israel. Basically, he promises, now if you will obey me and keep my commandments, you will be my special treasure
from among all the peoples on the earth. और परमेश्वर वहाँ पे इसराइलियों को वाचा देता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे और उसके अनुसार चलोगे तो तुम मेरे चुने हुए निज राष्ट्र होगे। Every time he goes up, और हर बार वो ऊपर जाता है this is wonderful events happening. और वहाँ पे अद्भुत घटनाएं हो रही है। God calls them to consecrate. और परमेश्वर कहता है कि तुम स्वयं को शुद्ध करो। Again he comes down. और फिर वो वापस आता है, Then he goes up. फिर वापस ऊपर चढ़ता है। God says, check, nobody is around the boundary. और देखो कि कोई भी उस सीमा के पास में तो कोई आया नहीं है। And he comes down, tells them. और फिर वापस आता है, फिर उनको कहता है। And in the process, yes, the 10 commandments were given here. और उस घटना के दौरान 10 आज्ञाएं वहाँ पे हमको दी गई। Is that true? क्या ये सच है? 10 commandments were given here. और 10 आज्ञाएं प्रभु उन्हें देता है? Actually, no. नहीं। God gives them more than 10 commandments. और 10 से भी अधिक आज्ञाएं प्रभु उनको We देता only है। remember the 10 commandments. हम केवल वो 10 आज्ञाओं को याद But करते there's हैं lot more what God gives. और उससे भी अधिक वहाँ पे प्रभु उनको कहता है। So this is an important event when they get not only 10 commandments but many more such laws. और वहाँ पे केवल उनको 10 आज्ञाएं नहीं मिलती, उससे भी कई ज़्यादा उनको नियम वहाँ पे मिलते हैं। One of the fascinating thing about this part of the scripture, और ये वचन जो प्रभु के यहाँ पे लिखे है उसका एक अद्भुत भाग ये है। you know what it is? और ये क्या है? It's the first thing to be written in the Bible. और ये सबसे पहली घटना जो है जो बाइबल में हमें देखने मिलती है, लिखी गई है। Is it true? क्या ये सच है? Is it the first thing that's written क्या ये पहली बार of ये the Bible? जो बाइबल में सबसे पहली बार यही चीज लिखी गई है? So it's fascinating. और ये अद्भुत है। So among these events, I tried to analyze which is the most important event. और ये सभी घटनाओं में मैं सोचने लगा कि सबसे Because मुख्य I चीज wanted क्या to है find what is the central message here. और इसमें से मध्य जो संदेश है वो क्या है मैं जानना चाहता था। So तो यहाँ हम देखते हैं he comes down 6 times he does. 7th time, of course, one more fact, only not Moses saw God, but all the elders also saw God. और यहाँ पे 6 बार मूसा ऊपर नीचे जाता है और 7वीं बार भी जाता है और उसके मध्य में हमें देखने मिलता है कि केवल मूसा ही नहीं लेकिन जो वहाँ पे जो मुखिए थे वो भी प्रभु को देखते हैं। They also saw God. They in fact ate meal with God. और वो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वो उसके साथ में वो भोजन करते हैं। And they sign contracts, you know that? और वहाँ पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। Because not only Moses writes this, और लेकिन यहाँ पे मूसा ही ये नहीं लिखता है God also writes this. और परमेश्वर भी उसे लिखता है। So there are 2 copies. और वहाँ पे 2 When you उसकी sign a पर्ची है। contract, you get 2 copies. और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं उसकी 2 पर्ची होती है। Happens here. और यहाँ पे उस प्रकार से हमें देखने मिलता है। But what is the most important event? लेकिन उससे मुख्य चीज यहाँ पे क्या है? The 7th time when he climbs the mountain, जब 7वीं बार मूसा उस पर्वत पे चढ़ता है he says, elders, you stay here. और वो कहता है कि अगुओं को तुम यहाँ पे ही रुके रहो। And he alone climbs into the mountain, waits for 6 days. On the 7th day, he gets into the cloud. और वो अगुओं को कहता है कि तुम यहीं रुके रहो। वो फिर एक बार पर्वत पे चढ़ता है, 6 दिन तक के वो वहाँ पे राह देखता है। And 40 days he stays up there. और 40 दिन तक के He stays up there. और वो वहाँ पे ऊपर ही रहता है। 40 days. और वो 40 दिन वहाँ रहता है। So this is important. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। So what did he do in the 40 days? और वो 40 दिन मूसा वहाँ पे क्या कर रहा है? Is what we read at the start of this sermon. और यही हमने परमेश्वर के जो आज का जो सर्मन है उससे सुनने के पहले हमने देखा है। So at the 40 days he said you must, that is Exodus 25:9. The first thing God says, of course he says take contribution, but the idea is you must build this tabernacle and its furnishing exactly according to the pattern I will show you. और यहाँ पे हमें देखने मिलता है 9वें वचन में कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उस सब का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। So why is it important? और ये क्यों ये महत्वपूर्ण है? It is written in the previous verse. और ये इसके पहले वचन में हमको देखने मिलता है Have the people of Israel build me a holy sanctuary so I can live among them. और अगर इस्राएलियों ने मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाया होता जहाँ मैं उनके बीच निवास करता। This is a revolutionary thought here. और यहाँ पे एक काफ़ी महत्वपूर्ण का विचार यहाँ पे It's हमको not देखने happened मिलता है। before. और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। God came, God spoke to Abraham, God spoke to many
fathers and prophets, but this is the first time it's written that God wants to dwell among his people. और यहाँ पे ये पहली बार इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर ने कई बार अब्राहम से बात किया और काफ़ी सारे लोगों से उसने बात किया, लेकिन यहाँ पे पहली बार हमें देखने मिलता है कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि अपना पवित्र स्थान वहाँ बनाए। God, who is now from heaven seated on that 4,000 feet mountain, and the mountain is shaking and trembling, now God says, I want to dwell among my people. और जो स्वर्ग जो परमेश्वर है जो कि उस पर्वत पर मूसा से मिल रहा है और वहाँ पे काफ़ी गर्जन है और भूकंप हो रहा है, वो परमेश्वर वहाँ से कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच में निवास करना चाहता हूँ। That is the entire theme there. और यहाँ पे ये सबसे मुख्य भाग है। Whether you read the book of Exodus, Leviticus, Numbers is when they start living. All this, the centrality of the theme is God wants to live among his people. और निर्गमन, लय व्यवस्था और गणना, ये सब चीज़ों में जब हम देखते हैं वहाँ पे ये मुख्य चीज़ ये है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहता है। And this theme is not only of the Old Testament or the Exodus, Leviticus, Numbers, but that theme is throughout the Bible. और ये केवल पुराने नियम में ही हमको देखने नहीं मिलता है, उत्पत्ति, निर्गम या लेवी व्यवस्था में, लेकिन पूरे प्रभु के वचनों में, बाइबल में हमें ये चीज़ देखने मिलती है। That's why I took time to give you the importance of this Exodus chapter 25:8. और इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समय दिया ताकि इसका महत्व दिखा सकूं कि निर्गमन 25वां अध्याय उसके इन वचनों में क्यों ये महत्वपूर्ण है। This is the purpose. और ये उसका उद्देश्य था। You know, how does it relate to the New Testament? और ये नए नियम के साथ में ये किस प्रकार से जुड़ा है। John 1:14. और यूहन्ना इसका पहला अध्याय और इसके 14वें वचन में हम देखते हैं, If you see some translation, अगर हम कुछ उसके ट्रांसलेशन को देखेंगे, it says the word became flesh and tabernacled among us. और कुछ उसके जो ट्रांसलेशंस है, उसके जो भाषांतर है, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो वचन था वह देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वो रहा। That God wants to dwell among his people. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वह हमारे बीच में उसका डेरा था। Jesus repeats this in many places. और यीशु इसको कई बार दोहराते हैं कई जगहों पर। You know the incident where it says, destroy this temple and I'll raise it in the 3 days. और यीशु ने कहा कि इस मंदिर को तुम तोड़ दो और 3 दिन में इसे मैं पुनः स्थापित करूँगा। So Jesus was carrying that presence. और प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को वहाँ लेके चल रहा था। Because by that time the ark was lost. और तब तक के वो वाचा का संदूक जो था वो खो चुका था। You might have seen some movies, Raiders of the Lost Ark, they're still trying to find where the ark is. और कई चलचित्रों में हमको देखने मिलता है कि वाचा का संदूक किस प्रकार से खो गया था। Documentary that ark may be in Ethiopia. और वो कहाँ खो गया है, हो सकता है इथियोपिया में कहीं हो, But doesn't matter. लेकिन वो मायने नहीं रखता है। Because John 1:14 said where the ark is. और क्योंकि यूहन्ना इसका पहला अध्याय 14 वचन में हमें देखने मिलता है कि वो Jesus is वाचा the का ark. संदूक कहाँ है। यीशु वो वाचा को लेके आया है। And this continues till Revelation 21:3. और ये प्रकटीकरण तक के हमको देखने मिलता है, प्रकटीकरण इसका 21वां अध्याय 3 वचन तक। Because I'm trying to say that this theme is across the Bible. और क्योंकि ये जो थीम है, जो मुख्य संदेश है, पूरे बाइबल में हमें देखने मिलता है। So what does Revelation 21:3 say? और प्रकटीकरण इसका 21:3 में हमें क्या देखने मिलता है। It says, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among his people. He will live with them and they will be his people. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि फिर मैंने सिंहासन से एक ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनका डेरा वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। This is an important revelation that we can carry. और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है जो इसको हम साथ में लेके चल सकते हैं। Now that Jesus is risen, और प्रभु यीशु मसीह अब जो पुनरुत्थित है, where is the tabernacle? और ये वाचा का संदूक या पवित्र स्थान, पवित्र निवास कहाँ है? In the heaven? या स्वर्ग में? Correct? Huh? It's us. वो हम हैं। Where does that say? और ये हमें कहाँ देखने मिलता है? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. और पहला कुरिन्थियों इसका 6वां अध्याय वचन 19 और 20 में हमें इस प्रकार से देखने मिलता है। What does it say? और यहाँ पे क्या लिखा है? Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? So we are the temple, और हम वो पवित्र मंदिर है, we are the tabernacle और हम वो पवित्र स्थान है where the presence of God resides. जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। I believe as we are talking, Pastor was preaching on, we are the new creation. और जैसे पासवान बात कर रहे थे कि हम एक नई सृष्टि है, So the part of the new creation is this, that we become the temple of God. और नए सृष्टि होने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के मंदिर बनते हैं We carry His presence. और हम उसकी उपस्थिति को लेके चलते हैं। Because if you go back to the story, see, the Israelites were redeemed people. और जब हम कहानी को फिर एक बार देखते हैं तो जो इस्राएली थे वो उनको छुटकारा मिला था। Even in Old Testament, God saved them first and then told them how to live. और पहले परमेश्वर ने उनको बचाया और उसके बाद में कहा कि किस प्रकार से जीवन बिताना है। So was that enough? क्या वो उतना काफी था उनके लिए? They got a new life. और नया जीवन उन्हें मिला। They got new way to live life. God और- tell them how can they live a good life. और परमेश्वर ने उनको नियम दिया और सिखाया कि किस प्रकार से तुम अच्छा जीवन बिता That सकते was हो। not sufficient. That's why God's presence was there amongst them. और वो उतना काफी नहीं था, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। Imagine Israelites every day morning they open up the tent. What they see? और हर दिन जब वो अपने तंबू को खोलते तो क्या देखते? They see the tent, और वो the tabernacle, और वो परमेश्वर के निवास स्थान को smoke देखते coming out of it, और वहां से उजाला आता knowing that God's presence is there. और वो ये जानते कि प्रभु की उपस्थिति वहां है। So that's the revelation we need to carry. और वो प्रकटीकरण हमको लेके चलना है। If we have to hold on to this new creation, we need to realize that God's presence lives in us. और अगर ये नई सृष्टि में अगर हमको चलना है तो इसका प्रकटीकरण यह है कि परमेश्वर हमारे साथ में जीवित हमारे देह में वो वास करता है। New creation by itself, और नया सृष्टि उसी के साथ, as Bible says, is a very clean place. और वो वचन कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है। What has gone 7 times will come back. और जो धुली हुई साफ सुथरी जगह है, अगर वहाँ पे जो चीज निकाली गई है वो 7 चीजों को और लेके आएगी। So we have to have this revelation that God dwells in us. और ये हमको जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे मध्य में वो रहता है And that should direct our lives. और वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक होना चाहिए। Holiness will come through this revelation. और पवित्रता इसी प्रकटीकरण के द्वारा हमें मिलेगी। And finally, it's not just an individual revelation. और ये कोई व्यक्तिगत ऐसा प्रकटीकरण नहीं है। In fact, if you go to my last scripture, Ephesians 2:21-22 says, और इफिसियों की पत्री अगर इसको हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय और 21वें और 22वें वचन को, and it says, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. और यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि जिसमें हम सारी रचना में एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बन जाते हैं। And the last part is specifically for us. और ये जो आखिरी उसका भाग है वो हमारे लिए है। Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. और यहाँ पे कि जिससे कि तुम भी आत्मा के द्वारा एक निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। I want to leave you with this central message. और ये मध्य और मुख्य संदेश के साथ में मैं आपको छोड़ना You might चाहूँगा। have known this, और हो सकता है हम इसे जानते हो, but I wanted to live the importance of this. लेकिन इसका जो महत्व है, मैं आपके साथ में रखना चाहता हूँ। That's why I took you through this story. इसलिए मैंने आपको इस पूरी कहानी को दोहराया। And we need to, as the Israelites saw the tent every day, we need to also have this revelation every day that God's presence lives in us. और जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर के निवास स्थान को हर दिन वो देखते थे, उसी प्रकार से हमको भी ये प्रकटीकरण होना चाहिए कि हमें भी परमेश्वर का निवास स्थान है। Amen? आमीन। Thank you.